Thank you so much for the invitation for today's webinar. It's really an exciting topic, and probably the most important that we should be working. I'm very thankful to the previous presenters because most of the things that have been covered have helped us in covering topics that I want to touch upon a little. So I thought we need to talk about why students fare badly in their exit exams, and this is the main idea of why do we want to do this webinar actually, and I just want to ask the participants to look at the attribution theory. I think, and the list goes on that why someone fails in an exam. Those of you who do not fail in the exam have never have complaints against any of the exam system because you are through. The complaints only come from people who fail to pass the exam. Now there are reasons from systems point of view, from the examiner's point of view, from the curriculum point of view, and the students themselves. So all these together becomes a holistic kind of a problem that can lead to the idea that the system is not working. But let us explore these in a bit detail. When you say that I have lots of I'm doing lots of things, I'm working, so वहाँ आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आप इतना सारा काम कर रहे हैं, आप आपके ख्याल में आपके पास बहुत सारा बोझ है, आप इमरजेंसीज भी कर रहे हैं, आप ओपीडीज भी कर रहे हैं, आप सुपरवाइजर्स का काम भी कर रहे हैं, आप पीयर भी काम कर रहे हैं, आपके घरेलू काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली जो मीनिंगफुल, अगर हम इसको समझेंगे मीनिंगफुल काम इनमें से कौन सा हो रहा है, तो आपको पता चलता है कि शायद उनमें से इतना सा काम मीनिंगफुल है, बाकी सारे का सारा काम तो शायद सिस्टम अपनी मर्जी से करा रहा होता है, या हमारा फोकस नहीं होता कि हमने इसको किस चीज से करना है, और हम उन चीजों को फोकस करते जाते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली क्लास जो सी है उसको पढ़ना, उसमें आना, उनकी प्रेजेंटेशंस नेक्स्ट टू निल है। एक मोटिवेशन की एक थ्योरी है, वही कहती है कि अगर इन एडल्ट लर्निंग थ्योरी के बीच में कि अगर समवन वांट्स टू डू समथिंग, तो contextual इन मीनिंग के बीच में he would himself or she would himself or herself come and learn the and attend that particular session. अनफॉर्चुनेटली अभी बाकी लोगों से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि जब कभी पीजीआरस के लिए कोई सेशन रखते हैं, कोई क्लास रखते हैं, या उनकी कोई एक्टिविटी होती है, उनको रिसर्च के लिए कहीं भेजते हैं, तो उनकी तरफ से जब तक ये खौफ नहीं डाल देते कि जी आपने अगर ना आए तो ऐसे हो जाएगा, अगर ना किया तो ऐसे हो जाएगा, तो दे नेवर कम अप with the into these classes. So this is one of the very important thing कि जब आप process के बीच में से सही नहीं गुजरते, at the end you find it difficult to pass. So you're busy all day long, but you are not in going in the right direction, and you're not following what should be actually done. और at the end of the day again at the crossroad खड़े, अब आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज करनी चाहिए और कौन सी चाहिए. This is the perspective from uh, the supervisor's point of view. I always believe that you as a postgraduate resident act like a, a chooser. So you just keep your mouth open, and whenever someone puts something in your mouth, you just eat it. And if someone do not feed you anything, it just you just keep the mouth open the way it is and wait for someone to come. So this is the lack of initiative, this is the lack of self actualization कि जिसके बीच में ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ग्रो करती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सभी सोचिएगा कि कभी आपने खुद इनिशिएटिव लिया हो, कि इनिशिएटिव लेके आप कुछ चीज प्रेजेंट करें, आपस में बैठे हैं, चार लोग ये डिसाइड कर लें कि अगर ट्रॉमा के लेक्चर्स हैं तो हम ट्रॉमा इस हफ्ते ट्रॉमा पढ़ लेंगे सारे का सारा और बांट लें आपस में काम. हमेशा ये सुपरवाइजर की तरफ से ही आना पड़ता है. इसी तरह क्लिनिकल मेथड्स हैं, आपको पता है कि आपके क्लिनिकल मेथड्स होने वाले हैं, लेकिन आप उन क्लिनिकल मेथड्स को करने की बजाय वेट करते हैं कि जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म ना हो जाए, जब तक कोई एग्जाम ना आ जाए, या आपके ऊपर कोई सीनियर आपको जोर जबरदस्ती ना करे कि मैं अगर देखूंगा तो फिर करूंगा. तो ये एक्सटर्नल मोटिवेटर्स होते हैं. इंटरनल मोटिवेटर्स की हमारे पास
काफ़ी कमी हो जाती है। मेंटोर का रोल क्या होता है? मेंटोर का रोल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रास्ता दिखाना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये वो आपको हेल्प करेगा। रास्ता आपने खुद लेना है, रास्ता आपने खुद चूज़ करना है, लेकिन अगली सीढ़ी पे चढ़ाने का काम उसका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहेंगे कि मैं ये चीज़, ये काम अचीव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके सुपरवाइज़र का रोल या मेंटोर का रोल ये है कि वो आपको उसका सही और गलत बताए और वो यहाँ से आपको ये बता दे कि आपने कहाँ तक पहुँचना है और अगली सीढ़ी जो आप देखते हैं, जिसको आपको चढ़ना मुश्किल लगता है, तो उस सीढ़ी को अपनी जगह पे लेके आए और बताए कि आप ये काम कर सकते हैं, तो इसकी बनाते हैं। अदरवाइज़ अगेन वो आपको साथ लेके लिफ्ट करके इन सीढ़ियों को चढ़ाने के लिए उसका मकसद नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप देखें तो वो हेयरसे है। हेयरसे है कि इससे मैंने सुना और वो चीज़ें। अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे तो फिर आप कभी भी अपने एम तक नहीं पहुंच सकते और सिस्टम के बीच में उसको खराब करने में और उसके खिलाफ खराबियां निकालने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। So when I was in first year FSC, so second year FSC, so one of our seniors said you cannot get admission into a medical college and would never be a doctor because you do not have 500 plus marks in your part one. तब 2 years होते थे, year 1 2. But who was talking? He's a third year botany student. I mean, he has nothing to do with the FSC, with the pre-medical, and उसके बात सुनने से हाँ मशवरा हो सकता है, लेकिन उसके बात करने से मुझे कोई फर्क नहीं होने वाला। फिर एक खबर कि जी इस दफ़ा लाहौर में या कराची के सेंटर में बहुत लोग फेल हो रहे हैं, तो इसलिए चलो कराची चले जाते हैं। तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप पास अपनी वजह से हो रहे हैं, सेंटर चेंज करने की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि सिस्टम तो एक सा ही है, पेशेंट भी एक जैसे ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कई दूसरे फैक्टर्स हों कि आप कराची चले जाएँ, तो वहाँ पे अब आपको घूमने के लिए कोई जगह ना हो, आपको हर वक़्त पढ़ना पड़े, वहाँ पे 2 लोग, 3 लोग आपको मिल जाएँ, जिनके साथ अच्छी ग्रुप स्टडी कर लें। तो ये वो सब चीज़ें होती हैं कि जिनको जो फैक्टर्स हैं जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर देते हैं इन द एग्ज़ाम। इसी तरह से एक एक बहुत गलत बात है जिसमें स्टूडेंट वुड से कि जी आज क्योंकि 10 लोग पास हो गए हैं इसलिए कल कोई भी पास नहीं होगा। दिस इज़ रॉन्ग, दिस नोशन इज़ रॉन्ग। अगर किसी एक दिन कोई भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करेगा तो उस दिन कोई भी पास नहीं होगा और जिस दिन अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे उस दिन जितने लोग अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे वो पास होंगे नहीं। एक चीज़ हमेशा समझता हूँ कि 2 आखिरी सूरतें सूरह फलक और सूरह नास दोनों अगर आप समझ के पढ़ें तो whenever you are down, so they give you a very good idea. Someone gets in your head and tells you कि जी this is not going to happen because. तो उस वक़्त आप ये दोनों सूरतें उनको ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं तो you need to know कि जी ये आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है और आपकी मोरल बहुत सारा बूस्ट हो जाता है। एक बड़ी ज़रूरी बात ये है कि लास्ट टाइम जो एट्रिब्यूशन होती है वो ये थी द पेशेंट वाज़ नॉट गुड, एग्जामिनर्स वर नॉट गुड एंड दे वर बायस्ड, द सिस्टम इज़ करप्ट एंड द क्वेश्चंस वर आउट ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखें तो एक चीज़ इसमें से मिसिंग है और वो चीज़ ये मिसिंग है कि इसके बीच में ये नहीं लिखा कि मैंने क्या किया। सो आप ये सारे के सारे जो आइडियाज़ और एट्रिब्यूशन लेके अगले अगले इम्तिहान में लेके जाते हैं। लेकिन याद रखें कि आपने अगला एग्ज़ाम को इस बर्डन को साथ में लेके नहीं जाना। अगर आप इन सारे बर्डन्स को साथ में लेके चलते हैं, तो फिर तो काम नहीं हो सकता। सो यू नीड टू स्टार्ट अफ्रेश। स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम गेम कि आप ये शो करें कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अशफाक अहमद साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ों के दाँत नहीं होते, मगर ये काट लेते हैं और अगर ये काट लें, तो उनके ज़ख्म कभी नहीं भरते। ये उन लोगों के लिए होता है जिनसे आप मशवरा माँगते हैं और वो आपको कहते हैं कि तुम पास ही नहीं हो सकते और आप समझने लग जाते हैं कि शायद हाँ, मैं कभी पास नहीं हो सकता। एक फ़िल्म आपने देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसके बीच में एक एक उसमें एक एलिमेंट है जादू की जप्फी का। सो बेसिकली एक मेंटर के पास आपको एक जब वो एनकरेजमेंट करता है ना, तो इट एड्स अ ग्रेट डील। यू नीड अ फ्रेंड मे बी कि जो आपको ये बता सके कि जी इसको अगर मैं यूँ कर लूँ और वो आपको उठ के कहे कि हाँ, तुम कर सकते हो। सो वो जो मोटिवेशन है वो प्रोबेबली बाकी बहुत सारे लोगों से मशवरा करने से, बात करने से नहीं आती। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि वी नीड टू फाइंड अ फ्रेंड एंड अ मेंटर कि जो आपकी बात को सुन ले और ज़रूरी नहीं है कि वो आपका इमीडिएट सीनियर हो, आपके इर्द-गिर्द हो, कोई भी हो सकता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन जो आपको सपोर्ट कर सके। बट रिमेंबर, इन द एंड इट इज़ ओनली यू. It is only you who has to rise again.
It is only you as you to become stronger every time that you fall. And remember, you do not lose until you give up. So this is a very important message actually to understand कि आपको किस तरह से चलने की जरूरत है. What was the most memorable cricketing moment in the history of Pakistan? Was it World Cup 1992? जिन लोग क्रिकेट देखते हैं, they would remember the Calcutta Test match 1999. And actually, इस सीरीज में 2 दफा सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हुआ. एक दफा सकलेर मुश्ताक ने बोल्ड किया और सेकंड टाइम मशहूर जो स्पेल था शोएब अख्तर का, उसमें उसने इनको 0 पे आउट. लेकिन क्या वो दोनों दफा 0 पे आउट हुआ तो इसका मतलब ये थी कि वो एक बुरा करेक्टर है? ऐसा नहीं है. Because in the between these two innings that he got a duck, he got 132 and won a match for India at the second test match जो 1999 की सीरीज का था. Whenever you have a new exam, you need to start as a new day. You need to take a new guard. You need to understand that this is a new innings, and the new innings starts always from zero, and then it will gradually go, and you may reach the highest position. You must understand, remember Virat Kohli making 264 in ODI match, which is, I mean, that is anything, and the same guy can get out at zero. In the end, I would just quickly want to tell you something. You need to prepare well. You need not to be clumsy. So, why do I say that? Because clumsiness is what the examiners would say a definitely no. It is not going to say that you're looking out of touch. What's happening to you? The only thing that you see is that this person is not fit to be a consultant at the moment. Remember, you are looking for a day one senior registrar as an examiner. कि आप क्या एक educated, safe, competent, ethically sound और skillful senior registrar की तरह कल इम्तिहान दे सकते हैं, कल जाके ओपीडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. और अब आप खुद सोच लें कि आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बीच में अगर एक सीनियर रजिस्ट्रार ज्वाइन करता है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप उसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेशेंट जो है ना, एक कोई भी जो पेशेंट आपके पास आता है उस पेशेंट को वो वहां पर देखे, देखने के बाद उनको जो है उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री ले, उसके एग्जामिनेशन करे और एक अच्छा सा प्लान बना के हाउस सर्जन को दे दे. अब आप ये समझ लें कि वो जो हाउस सर्जन है जिसको आपने एक एक चीज बात समझानी है, वो आपका एग्जामिनर है. दिस इज एवरीथिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द स्किल्स कंपोनेंट ऑफ योर एग्जाम. Very quickly, I'll tell you a couple of other things. Very common problem that we have. शॉर्ट केस के बीच में एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड आया तो इसकी एग्जामिनेशन के पार्ट को 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया होगा और फिर इंटरप्रिटेशन के नंबर्स होंगे और बाद में मैनेजमेंट के नंबर होंगे. ये टोटल 10 मिनट होते हैं, 5 मिनट पहले एग्जामिनेशन के और फिर 5 मिनट आगे इंटरप्रिटेशन और हिस्ट्री के. लेकिन होता क्या, होता यह है कि जो कैंडिडेट है ना, वो थायराइड की एग्जामिनेशन में ही 5 मिनट लगा देता है, लिम्फ नोड्स, टॉक्सिसिटी और फेस को भूल जाता है. अब जब वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा तो उसके पास तो नंबर ही 20%. इन 20% में से अगर वो बहुत भी ले लेगा तो आधे से ज्यादा तो नहीं ले सकता. और फिर उसकी बेस पे, क्योंकि अब उसको ये पता ही नहीं है कि लिम्फ नोड्स हैं कि नहीं है, सो वो मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं बता सकता. अगर वो नंबर लेगा भी, वो थोड़े से नंबर ले सकता है. सो मतलब ये है कि एक सिंपल सादा सा स्टेशन था, लेकिन आपने एज अ कैंडिडेट क्योंकि पूरा के पूरे कंपोनेंट्स ही नहीं किए, तो ये मुश्किल से कंप्लीट होगा. लॉन्ग केस में चले जाएं तो लॉन्ग केस के बीच में भी यू वुड गिव अ न्यू पेशेंट जिसके बीच में देखें ब्रेकअप क्या है. आई एम टॉकिंग अबाउट एमएस प्रोग्राम, एमडी प्रोग्राम एंड एफसीपीएस प्रोग्राम ऑल alike. I mean, there is a 15 minutes history and 10 minutes clinical examination. Now you have 5 minutes to summarize everything on a piece of paper ताकि आपके आइडियाज जो हैं ना उनको आप समराइज कर सकें. अब होता क्या है, और फिर उसके बाद 15-15 मिनट का है. लेकिन होता क्या है, होता यह है कि आप स्टार्ट जो है ना वो स्लो लेते हैं, 20 मिनट तक हिस्ट्री लेते रहते हैं, फिर अचानक आपको जब बेल बजती है तो अचानक से क्लिनिकल एग्जामिनेशन शुरू होती है. अब आप कभी कोई कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं, और वहां पर पैनिक ही फैल जाती है. फिर यू डू नॉट हैव टाइम टू समराइज एवरीथिंग यू वांट से एंड यू गो राइट इनटू द एग्जामिनेशन. अगर एग्जामिनर आपको 1 या 2 मिनट दे भी देता है तो भी आप अपना टाइम लूज कर रहे हैं. अब उससे होता क्या है कि जो लास्ट आपका मैनेजमेंट प्लान वाला हिस्सा होता है, उस मैनेजमेंट प्लान के हिस्से के बीच में आपके पास वो जो 15 मिनट है, वो 15 की बजाय शायद 12-10 ऐसे मिलते हैं, जिसकी वजह से रिसेंट एडवांसेस तक एग्जामिनर नहीं पहुंच सकता और इसलिए फिर आपके पॉइंट्स मिस हो जाते हैं.
फिर अब आप ये देखें कि क्वेश्चंस जो हैं और उसके आंसर किस तरह से होते हैं। बहुत कॉमनली होगा पेशेंट आपके पास जॉन्डिस के साथ होगा और जॉन्डिस के पेशेंट से सवाल पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि पेशेंट इज विद जॉन्डिस एंड व्हाट आर योर डिफरेंशियल्स। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए कि डिफरेंशियल जॉन्डिस इज प्री हेपाटिक, हेपाटिक, पोस्ट हेपाटिक। लेकिन आंसर क्या आता है? नेज़ल कोलेंजियोकार्सिनोमा। अब ये तो आपने एक लूज बॉल खेल दी और इस लूज बॉल को खेलने के बाद आप अब तो एग्जामिनर जो जो मर्जी कर सकते हैं। एग्जामिनर को अब आपको पता है क्योंकि आप कमिट कर चुके हैं कि आपने क्या करना है, तो उससे पूछेगा कि व्हाई डू यू थिंक इट इज कोलेंजियोकार्सिनोमा। अब आपके पास आंसर नहीं है। अब या तो आप सॉरी कहेंगे कि सॉरी सर, ये तो मैंने, मेरे ख्याल में ये नहीं है और मैंने तो ये सोचा था, या इसके ऊपर, या यू जस्ट ब्लाइंडली टेल यू कि जब पेशेंट की एज देखें, इसका वेट लॉस देखें, इसकी वजह से लगता है। मैं नाउ अंडरस्टैंड दिस इज नाउ यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू अ क्वैगमायर। अब आप एक दलदल में फंसना शुरू हो गए हैं। अब आप एक कमिट करने के बाद एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं। सो अब आपका ये काम नहीं ठीक चलेगा। सो इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें, दोबारा वहाँ पे ठीक करें और एग्जामिनर्स आपको वहाँ पर हेल्प कर देते हैं इस सेंस के बीच में कि आपको, जैसे ओपीडी में होता है, वो ये नहीं है कि आपसे स्पेसिफिकली आपसे ही होगा। जैसे ओपीडी में अगर आप गलती करते हैं तो आप ठीक कर सकते हैं और फिर दोबारा सीधे रास्ते पे आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे होता नहीं। जब आप वाइवे की बात करते हैं और वाइवे में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये है कि यू नीड टू पेस योर वाइवा। जो जैसे अगर आप पढ़ा रहे हैं ओपीडी के बीच में किसी पेशेंट के मुतालिक, तो आप थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं और समझाते जाएँगे और पढ़ाते जाएँगे। And then wait for the examiner to get back to you with the answer. So what are the three most common causes? Just do not start explaining the three causes. Just enlist three causes and ask what the examiner has to say. The examiner would come back and give you one more question and then answer that question. In this way, you move on step by step. And I'm strong with the investigation part. So I would try to manage something, to gain some time by explaining the investigation to the examiner। जब मैं ये इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पे आ गया, तो जब इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आएगा तो अभी अब आप टाइम का ब्रेकअप करके देखें ना, तो ये 15 मिनट ही है ना। तो 15 मिनट को अगर आप पेस आउट करते हैं दो दो मिनट के बीच में, तो हो सकता है कि जो आपको पार्ट अच्छा आता है, अगर मैनेजमेंट का पार्ट आता है, रिसेंट एडवांसेस का पार्ट अच्छा आता है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अच्छा था, तो इन पार के बीच में यू नीड टू प्ले एट योर स्ट्रेंथ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट यू लर्न ओवर टाइम एंड दिस कैन ओनली बी डन व्हेन यू प्रैक्टिस। So when you are given give a lead to the examiner, to when you have a question, so answer a question, so always end your answer with a lead. So you tell the examiner, sir, इसके बीच में ईआरसीपी होनी चाहिए, एमआरसीपी होनी चाहिए और साथ में ट्यूमर मार्कर्स भी होने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एमआरसीपी। Now you are giving a lead. So the examiner wants to know okay, what is your idea about the MRCP. But remember, this can only be done if you're sure that you are going to give another example. Do not lend yourself into a trouble by giving it an answer कि जो आपको खुद उसका आंसर नहीं पता। सर एक नई टेक्निक आई हुई है एंड देन उसे पता नहीं सर, उसका मैंने सिर्फ नाम सुना था। So यहाँ you going to lose the your marks as well as your initiation. So this 30 minutes will decide your 30 minutes career. Remember this. So इसमें आपकी एनर्जी फुल होनी चाहिए, आपका कंपोजर सारा होना चाहिए और आपको बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। In the end, let me summarize that the inadequate exam preparation during the training is the most important component or the problem that we face among people who fail in the exam. If you are in the exam regularly, if you're in your training program regularly, you are not on leaves, you are not going here and there, you're not going to the northern areas every now and then, you pass easily. Then there are personal factors and there are exam related factors, and there are the luck also matter, like such right? And then there is stress and anxiety. The system factors that already have been discussed by the other presenter is the information overload, the poor time management, poor teaching skills as well at some points, and their unfair examinations. So ये सब मिला के वो वजह बनती हैं. So it's not one idea कि इस एक वजह से मैं फेल होता हूँ. So there is compound action जिसकी वजह से आ सकते हैं. So I would be happy to answer any questions now. So this is my email address. If anyone wants to talk to me, so I would be very happy to answer.